हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से जीआईबी सीआईबी प्रेप पे। आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं अबाउट लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, सो यूनिट 4 आपका जो हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट है। तो इससे पहले अगर हम लोग बात करते हैं यूनिट 1 2 3 एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस, एलआरएस and correspondent banking in NRI banking. So these three units we already covered in our past three sessions, four session basically. Okay. So today we are going to talk about documentary letter of credit. So first, let's have a look about the course content with like the subtopics and others. तो अगर हम लोग डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके बेसिक इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, पार्ट ए। 2B is operation of letter of credit, uniform custom and practice for documentary letter of credit, UCP 600. इसके अलावा liabilities, responsibility and right of parties. Then we have document under LC scrutiny. Then we have crystallization, follow up for bill under LC, and safeguard for banks. Risk related to LC. Then we have standby LC, uniform rule for bank to bank reimbursement, international standard banking practices. Then last one we have Incoterms, that is known as international commercial terms, right? Like then finally we have case studies. So for case studies we will have separate sessions. Okay, so this is your course content in your unit 4 module A BFM. So now we will discuss these particular one by one. So first of all about the basic introduction of LC, letter of credit. So जैसे अगर हम लोग बात करते हैं banking book का sorry the banking activities. So risk wise we have three books. One is banking book which deal with the deposit and advances. Second one is trading book which deal with the tradable securities, and third one is off balance sheet exposure, and LC is part of off balance sheet exposure where bank is generally providing guarantee on behalf of importers. अगर हम लोग LC डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, सो एप्लीकेंट फॉर LC डॉक्यूमेंट इज मोस्ट ऑफ टाइम और मोस्टली इट इज इम्पोर्टर्स। ओके, सो जो भी इम्पोर्टर्स आपके हैं वो आपका अपने बैंक के थ्रू बेसिकली LC जारी करवाते हैं फॉर एनी इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज, राइट? तो वहाँ मोस्टली आपका इंटरनेशनल ट्रेड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो इट इज अ डॉक्यूमेंट विच जनरली गारंटीज टू द सेलर कि दे विल रिसीव देयर पेमेंट ऑन टाइमली बेसिस और फुल अमाउंट। ठीक है, सो स्टैंड बाय एलसी आपका जो कहीं ना कहीं बैक करता है एलसी डॉक्यूमेंट को, एंड जो कहीं ना कहीं आपका जिसके थ्रू बैंक एज अ गारंटर आपका यहाँ पे काम कर रहा होता है। ठीक है, सो एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर चार्ट वी हैव बायर and we have seller. There is an agreement, buy sale agreements between these two parties. ठीक है, तो जहाँ पे buyer is agreeing to buy some commodities for a defined price or for a fixed time duration, and seller is agreeing to sell that particular one on so we have a sale agreement between these two parties. ठीक है, तो इनके बीच में आपका एक सेल एग्रीमेंट आपका हुआ। ठीक है, इनवॉइस आपका जनरेट हुआ बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर वन बायर। अब जैसे सपोज दैट बायर इज फ्रॉम इंडिया एंड सेलर इज फ्रॉम यूएस। ठीक है, सो बायर विल कनेक्ट टू योर बैंक एज विच इज नोन एज इशूइंग बैंक। ठीक है, सो बायर इज एप्लीकेंट इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है, एलसी के केस में आपका बायर क्या होगा, एप्लीकेंट होगा, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके ऊपर होंगी। ठीक है, सो उसने आपके बैंक को अप्रोच किया टू इशू एलसी regarding this particular trade which is based on this particular document जो sales invoice है उनके basis पे। ठीक है, then buyer bank will approach to their correspondent bank which is known as advising bank and confirming bank which is also known as nominated bank by the seller। ठीक है, तो ये प्रोसेस पूरा ऐसे चलता है कि लाइक जैसे ये डॉक्यूमेंट्स है इसके बेसिस पे आपका सारी चीजें होंगी। इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपका बिल ऑफ एक्सचेंज रेडी होगा, सॉरी लेटर ऑफ क्रेडिट आपका रेडी होगा। उस लेटर ऑफ क्रेडिट के बेस पे आपका आगे की सारी चीजें आपका जो डिजाइन की जाएंगी। ठीक है, तो जैसे ही सेलर आपका ये चीजें शिपमेंट कर देगा तो उसके बाद आपका पेमेंट इनिशिएट होगा जिसमें स्विफ्ट की मैसेजिंग आपके लिए रहेंगी। ठीक है, और आपका जो सेलर का आपका एडवाइजिंग बैंक या जो नॉमिनेटेड बैंक है, सो
they'll do the documentation part. They'll submit documents to the issuing bank, and then issuing bank will make payments. तो इसमें around आपका, अगर आप स्विफ्ट मैसेजिंग को इंक्लूड करते हैं, so there are around 13 step in this particular process. उनको भी हम लोग यहाँ पे आपका समझते हैं. तो पहले आपका बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं अबाउट दी एलसी. So a letter of credit is a document sent from a bank or financial institute that guarantees that a seller will receive a buyer's payments on time and for the full amount. Letter of credit are often used within the international trade industries. ठीक है, जो importer exporters हैं, they generally use this particular. अब जैसे कुछ स्टेप आपका यहाँ पे एक और चार्ट आपका, ठीक है. So buyer and seller जिनके बीच में आपका there is a sale agreement, ठीक है. So on the basis of this, buyer will apply for the file an applicant to the issuing bank, ठीक है, कि आप मेरे behalf पे क्या करें, ये आपका letter of credit आपका issue करें, ठीक है. So then through the help of correspondent banking, which is advising bank, they'll connect to their nominated bank. Most of time their advising and nominated banks are same, ठीक है. So जैसे ही आपका ये एक्सपोर्टर सामान भेज देगा, then they'll start for the payments आपका, ठीक है. तो यहाँ पे steps आपके clearly mention है, तो जिसके थ्रू आप इसको देख सकते हैं. पहला, there is a sale agreement first, ठीक है. Second one is buyer apply for LC. Third one is issue LC to advising bank, and fourth one is advise LC to seller. Fifth one is present required documents to advising or nominated bank. Then sixth one is nominated bank present document to issuing bank after the shipment is done. Then seventh one is if document comply, issuing bank make agreement to pay, तो वो आपका उसको पेमेंट कर देगा. So this is the process, एक बेसिक प्रोसेस. अब इसमें स्विफ्ट की मैसेजिंग आ जाती है, तो उससे थोड़ा सा ये जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो वो और आगे इंक्रीज होंगे. तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को भी इंक्रीज करते हुए चलेंगे. सो LC is a document that guarantees the buyer payment to seller. It issued by a bank and ensure timely and full payments to the seller. If the buyer is unable to make such payments, the bank cover the full or the remaining amount on behalf of the buyers. ठीक है, तो यहाँ पे जनरली क्या हो रहा है आपका कि लाइक दिस डॉक्यूमेंट, अगर आपका जो सेलर है, अगर वो जो सेल एग्रीमेंट्स के अंदर जो सारी चीजें उन कंडीशंस को फुलफिल करता है, सो बैंक इज गिविंग दैट गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ बायर्स कि अगर बायर नहीं भी करेगा, सो वी विल मेक दैट पर्टिकुलर पेमेंट. सो दैट इज जनरली नोन एज अ फाइनेंशियल गारंटी. बट देयर आर सम कंट्रीज जहां पे फाइनेंशियल गारंटी वर्ड आपका इस्तेमाल करना मना है, लाइक यूएस, यूके. तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं आपका स्टैंड बाय गारंटी, राइट. सो दिस इज द चार्ट. आई होप अगर आप लोगों ने मैकमिलन का बुक खोला होगा तो वहां पे आपने ये चार्ट देखा होगा. सेम थिंग इंक्लूडिंग स्विफ्ट मैसेजेस, ठीक है. तो आप कैसे ये काम करता है, एक बार दोबारा से आपका इस जर्नी को देखते हैं, ठीक है. सो देयर इज एन ऑर्डर, ठीक है. आपका सबसे पहले बायर और सेलर के बीच में, ठीक है. इंपोर्टर इज फ्रॉम इंडिया एंड बेनिफिशियरी विच इज फ्रॉम यूएस, ठीक है. सो ऑर्डर कंफर्म्ड आपका, ठीक है. सेकंड स्टेप. थर्ड वन इज जैसे बायर और सेलर के बीच में देयर इज अ सेल एग्रीमेंट, ठीक है, इस तरीके से. देन एप्लीकेशन फॉर एलसी, ठीक है. सो आप जो बायर है आपका, इंपोर्टर है, वो किसी भी आपका जो बैंक इंस्टीट्यूट है उनसे आपका दे विल अप्लाई फॉर द एलसी, ठीक है. फोर्थ वन इज एलसी ट्रांसमिशन थ्रू स्विफ्ट कोड MT70, ठीक है. फिफ्थ वन इज एलसी एडवाइजिंग, ठीक है. कौन जो भी एडवाइजिंग बैंक आपका होगा, ठीक है. सिक्स्थ ए इज एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज. सिक्स्थ बी इज गुड्स आर शिप्ड, ठीक है. सेवंथ इज presentation of documents for scrutiny, ठीक है. Then we have eighth one, ठीक है. eighth one is submission of documents after scrutiny, ठीक है. Scrutiny means उनकी जांच पड़ताल होने के बाद, ठीक है. Ninth is, if we talk about ninth, deliver documents in compliance of LC. And tenth one is copies of documents. We missed this eighth one, ठीक है. eighth one we have to this, ठीक है. 10th one is पेमेंट मेड एट स्ट्रेट और ऑन ड्यू डेट, ठीक है. जिसमें आपका स्विफ्ट मैसेजिंग यूज होगा MT202. दीज आर द स्विफ्ट कोड, ठीक है. अब ये पेमेंट मेड एट साइट, सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एलसीज, जिसमें दो आपको मिलेंगे. एक आपका होता है साइट, मींस एट द टाइम ऑफ शिपमेंट, जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर हो जाएंगे, सेम टाइम आपका पेमेंट, ठीक है. सो डिमांड बिल की तरह जो काम करते हैं. अनदर वन इज काइंड ऑफ वेयर वी हैव
अ स्पेसिफिक ड्यू डेट, लाइक आफ्टर 30 डेज, आफ्टर 60 डेज, उस तरीके से जो आपके यहाँ पे रहेंगे। 11th आपका क्रेडिट एडवाइस, 12th वन इज गुड टेकन डिलीवरी, एंड 12th कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद बीओई डिटेल्स, एंड आई गेस 12th वन ओनली, ओके। हाँ, तो ये आपके 12 आपका जो स्टेप्स जो इन्वॉल्व रहते हैं किस केस में, आपका जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज आपका ट्रांजेक्शन होता है उसके अंदर, ठीक है। तो जिसमें आपका आईडीएम, इंडियन कस्टम आईडीएमएस, ठीक है, आपका इंपोर्ट एक पोर्टल आपका होता है बेसिकली, जिसमें कहीं ना कहीं सारी इंफॉर्मेशन आपका अपलोड की जाती है व्हेन विल कम टू द एक्सपोर्टर इंपोर्टर फैसिलिटीज इन इंडिया। सो आईडीएमएस एंड ईडीपीएमएस, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपका 2014 के अंदर आरबीआई के द्वारा बनाया गया था, जिसमें कस्टम दे हैव टू अपलोड दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो ओवरसीज कस्टम, एलसी एडवाइजिंग बैंक इन यूएसए या अदर्स, आपका ये जो सारे एरियाज जो आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये पूरा आपका प्रोसेस जो एलसी के अंदर आपका रहता है, ठीक है। पार्टीज की अगर हम लोग बात करें, जैसे बहुत बार आपने सुना होगा एडवाइजिंग बैंक, नॉमिनेटेड बैंक, एप्लीकेंट, आपका इशूइंग बैंक। तो ये होते क्या है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं, बहुत आसान है वैसे। जैसे आपका एप्लीकेंट इंपोर्टर आपका, ठीक है, इशूइंग बैंक हु इशू द एलसी ऑन बिहाफ ऑफ इंपोर्टर्स, ठीक है। Advising bank, which is a correspondent bank most of time from the foreign country, ठीक है, from the exporters country. Nominated bank which is nominated by the exporter. तो इस तरीके से आपको ये लिंक देखने के लिए मिलेगा। So the buyer and importer of the or the applicant on whose behalf LC is open, seller or exporter beneficiary of LC, opening bank, buyer's bank who establish or issue the LC, advising bank, bank in a seller's exporter's country who act as an agent of issuing bank and authenticate and advise the LC, which is mostly part of correspondent banking, ठीक है। जैसे SBI आपका सपोज दैट इंपोर्टर्स बैंक है, SBI का जो correspondent बैंक है यूएस के अंदर, सो थ्रू दैट पर्टिकुलर वन। confirming bank or nominated bank who undertake to pay on behalf of issuing bank, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो ये पार्टीज जो एलसी के अंदर आपका इन्वॉल्व होते हैं, जो बार बार आपको देखने के लिए मिलेंगे। नाउ विल कम टू द टाइप्स ऑफ एलसी। यहाँ पे ना कुछ एरिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन टाइप्स के ऊपर वो कई बार क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट ओरिएंटेड देता है, यूसीपी 600 गाइडलाइंस या अदर्स। तो ऐसे बहुत सारी चीजें इस पर्टिकुलर यूनिट से आपको सीखने के लिए मिलेंगी, जो एग्जामिनेशंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हर साल आपको इस एलसी के ऊपर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। सो अगर हम लोग बात करें टाइप्स का, सो वी हैव सो मेनी टाइप्स, जैसे डॉक्यूमेंट्री एलसी, मतलब विच इज सपोर्टेड बाय सम डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आपका क्लीन एलसी, जहां पे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कंफर्म्ड एलसी, दे आर इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। अनकंफर्म्ड, दे आर रिवोकेबल्स, जहां पे कंडीशंस को चेंज किया जा सकता है। फिक्स एलसी सेम, रिवॉल्विंग सेम, ठीक है। मतलब ये आपका कंफर्म इन दिस, और रिवोकेबल और इररिवोकेबल, ठीक है। रिवोकेबल और इररिवोकेबल, मार्जिनल, एंटीसिपेटरी एंड दिस, ठीक है। तो एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले आपके पास है साइड क्रेडिट, ठीक है। साइड क्रेडिट जनरली क्या होता है, ऑन डिमांड, कि जब भी आपका डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट होंगे एट द टाइम ऑफ बिल ऑफ लेटिंग, सो पार्टी और दैट इशूइंग बैंक दे हैव टू इनिशिएट द पेमेंट आल्सो, ठीक है। अदर्स केसेस में क्या होगा, आपका क्रेडिट बिल्स के अंदर क्या होगा, सो इट इज फॉर अ फिक्स टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। लाइक लेट्स से 30 डेज, 45 डेज या 60 डेज का टाइम वहां पे रहता है, ठीक है। सो अंडर दिस एलसी, डॉक्यूमेंट आर पेबल एट अ साइट upon presentation of the correct documents. For example, a businessman can present a bill of exchange for to a lender along with a side letter of credit and take the necessary funds right away. A side letter of credit is more immediate than the form of लेटर ऑफ क्रेडिट आपका, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे जनरली साइड लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, कि जैसे शिपमेंट्स हो रही है, अगर डॉक्यूमेंट्स पास ऑन हो रहे हैं तो सेम टाइम आपका पेमेंट्स को भी इनिशिएट किया जा रहा है। दूसरा एप्लीकेशन क्रेडिट और टाइम क्रेडिट, विच इज ऑल्सो नोन एज उसेंस बिल, ठीक है। उसेंस बिल के नाम से इसको हम लोग जाते हैं, जहां पे एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन होता है, ठीक है। सो बिल ऑफ एक्सचेंज इज बेसिकली अ मीडियम ऑफ पेमेंट, ठीक है। सो लाइक जैसे जो पेमेंट्स के मेथड्स हैं, तो बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी अ मीडियम ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ उसेंस बिल, जहां पे 30 डेज, 45 डेज या 60 डेज जो भी एग्रीड टाइम ड्यूरेशन है, उसमें वो पेमेंट आपकी होगी। सो अ बिल ऑफ एक्सचेंज विच आर ड्रॉन and payable after a period are called usance bill,
Under acceptance credit, these usance bill are accepted upon presentation and eventually honored on their respective due date आपका, ठीक है. जैसे bill of exchange में होता है ना, I order to pay you और I order to pay me or my order worth rupees 10 lakh for value received. So after 30 days. तो this is the case of bill of usance. Demand के अंदर क्या हो रहा है आपका on the specific date आपका, ठीक है. तो इस तरीके से दो रहेंगे. रिवोकेबल आपका, रिवोकेबल और इररिवोकेबल. आज के डेट में जनरली आपका इररिवोकेबल्स एलसी चलते हैं, ठीक है. सो रिवोकेबल इज जहां पे कंडीशंस कैन बी मॉडिफाइड. ओके, so a revocable LC is a credit that the term and condition of which can be amended or cancelled by the issuing bank. This cancellation can be done without prior notice to the beneficiaries. तो इसीलिए इसको आपका हटा भी दिया गया. Irrevocable credit is a credit the term and conditions of which can neither be amended or nor cancelled. Hence, the opening bank is bound by the commitments given in the LC, और जिसको हम लोग स्टैंड बाय LC के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन आपका confirm credit is irrevocable आपका. so only irrevocable LC can be confirmed. A confirmed LC is one when a banker other than the issuing bank adds its own confirmation to the credit. In case of confirmed LC, the beneficiary's bank would submit the documents to the confirming bankers. Back to back credit. बैक टू बैक क्रेडिट इज, ये भी बहुत ज्यादा चलता है, ठीक है. इट इज अ केस जैसे देयर इज अ एक्सपोर्टर फ्रॉम यूएस, ठीक है, उसको अपना सामान इंडिया में बेचना था, ठीक है. उसने कोई इंडियन इंपोर्टर को पकड़ा और उसने इंडियन इंपोर्टर को फाइनेंस कराया, ठीक है. उसने आपका एलसी जारी करवाया आपका, जैसे इंडियन एक्सपोर्टर को फाइनेंस कराने का एक रूट उसने बनाया, ठीक है. सो दे आर आस्किंग, जैसे उसने आपका एलसी के अंदर उसको डाला एंड उसके थ्रू आपका पेमेंट्स करवाए, ठीक है. सो बैक टू बैक क्रेडिट इज द एक्सपोर्टर्स द बेनिफिशियरी रिक्वेस्ट his banker to issue an LC in favor of his supplier to procure raw material goods on the basis of the export LC received by him. This type of LC is known as back to back LC. ठीक है, तो एक्सपोर्टर उसने अपने बैंक से एलसी इशू करवाया किसको, आपका जो बायर्स है आपका उसके लिए, ठीक है. तो इस तरीके से जो आपके काम करते हैं, ठीक है. ट्रांसफरेबल विच कैन बी ट्रांसफर टू थर्ड पार्टीज, ठीक है. जैसे होता है ना आपका एंडोर्समेंट जिसको हम लोग बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में, ठीक है. सो वाइल एन एलसी इज नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखें आपका बिल्कुल, ठीक है. So LC is not negotiable instruments. The bill of exchange drawn under it are negotiable, ठीक है. जो डॉक्यूमेंट LC है that is not negotiable, बट हाँ जब पेमेंट्स का लिए जो आपका बिल है that can be negotiable or it can be endorsed to some other party. A transferable credit is one in which a beneficiary can transfer his right to a third party. Such LC should clearly indicate that it is a transferable LC आपका. तो ये LC के अंदर क्लियरली आपका मेंशन होना चाहिए. तो ये कुछ आपका डिफरेंट टाइप ऑफ LCs. अब आज की मतलब अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो शुरू होने वाला है दैट इज डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, ठीक है. सो यूसीपी गाइडलाइंस जिनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है. सो राइट नाउ इट इज यूसीपी 600 अभी जो आपका चल रहा है, ठीक है. सो द यूनिफॉर्म custom and practices for documentary credit, these guidelines are issued by किसके द्वारा इशू किए गए, आपका आईसीसी के द्वारा, ठीक है. सो आईसीसी आपका जैसे इन्होंने 1933-34 में फर्स्ट टाइम आपका यूसीपी गाइडलाइंस को इशू किया. इन गाइडलाइंस को जारी करने का जो मोटिव है कि जितने भी कंट्रीज आपका मतलब बेसिकली आपका जो इंटरनेशनल पेमेंट या जो एलसी जैसे डॉक्यूमेंट्स जब आपका एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में मूव करते हैं या पेमेंट ऑब्लिगेशंस आपके सेट करते हैं, तो उनके लिए जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए आईसीसी आपका दैट इज नोन एज मतलब आईसीसी आपका इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिसने ये गाइडलाइंस आपके बनाई. एज पर यूसीपी 600 वी हैव 39 आर्टिकल्स. इसमें आपका 39 आर्टिकल्स हैं जिसमें आपका एलसी की पूरी जर्नी आपका डिफाइन की गई, ठीक है. मतलब उस एलसी का डेफिनेशन क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशंस क्या होंगे, इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, सारी चीजें आपका जो यहाँ पे डिफाइन किए गए. एंड दीज आर वॉलंटरी इन नेचर बेसिकली एंड दे बिकम लीगल
once they are part of their selling agreement. जैसे बाय सेल आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो वहां पे they'll give a reference to UCP 600, then UCP will become legal in that particular case. तो UCP 600 आपका जो अभी लेटेस्ट है, बट इससे पहले दिस इज द 6th एडिशन ऑफ UCPs, ठीक है, जो 2007 आपका जुलाई 2007 से इंप्लीमेंट हुआ था. इससे पहले आपका 5 और एडिशंस हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ योर कोर्स कंटेंट. The uniform custom and practices for documentary credit are international rule published by ICC with the aim of standardizing international banking practices in relation to letter of credit or LC आपका, ठीक है. So many bank and lenders are subject to this regulation which aim to standardize international trade, reduce the risk of trading goods and services and गवर्न ट्रेड आपका, ठीक है. तो बेसिकली देखो हर कंट्री के जो पेमेंट के टर्म एंड कंडीशंस आपकी होती हैं वो अलग अलग होती हैं, तो उनको कहीं ना कहीं उनमें एक हार्मोनी सेट करने के लिए, उनको आपका एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये प्रयास आपका जो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड आईसीसी जिसके द्वारा आपका किया गया, ठीक है. सो द फर्स्ट यूसीपी वाज created in 1933 and has been revised by ICC up to the point of UCP 600. अभी आपका UCP 600 चला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए UCP 600 ही, बट उससे पहले का भी हिस्ट्री जानना जरूरी है और आपके एग्जामिनेशंस का भी पॉइंट है, ठीक है. सो वेयर first framed by ICC in 1933. Since then, these rules have been revised 6 times, and the 6th one is UCP 600. Okay, so we have 1951. Apart from this, 1933, then it get revised in 1951, 1962, 1984, 1994, and in 2007, which is known as UCP 600. So UCP 600 which become effective from 1st July 2007, and it is the latest and 6th revision of this ICC's UCP 600, right? So सबसे पहले आपका UCP 82 आपका it was the first one, ठीक है, 1933. So the first document issued under the UCP based on the credit documents circulation in 1929 contained the following provisions. Responsibility of bank to examine responsibility of bank to examine all documents and papers with cares to which care so as to ascertain that their face they appear to be in order. The word honor and the detailed requirement of transport and insurance documents were introduced during this particular period. Then when a documentary letter credit require presentation of other documents without further definition, bank will accept such document as tendered without any responsibility of their part. The stipulation that when the expiry date of the documents credit fall on Sunday or a legal holiday or a local holiday, the period of validity will be extended to the next following business day, ठीक है. जैसे 15 अगस्त को आपका होता है तो 16 अगस्त को. दिस इज अगेन टुडे आल्सो पार्ट ऑफ दिस UCP 600. ये UCP 600 का भी पार्ट है, ठीक है, अभी तक अगर हम बात करते हैं. फर्स्ट अमेंड सेकेंड अमेंडमेंट आपका सॉरी UCP आपका जैसे 1951, ठीक है. सो UCP 151 जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, 151. This was the first revision of UCP rules wherein the use of the term applicants, ठीक है, आपका applicants who is आपका जो इश्यू के लिए मतलब इम्पोर्टर आपका, ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है. तो पहले इसको हम लोग आपका प्रिंसिपल के नाम से जानते थे, नाउ इट इज नोन एज एप्लीकेंट. आज भी हम इसको एप्लीकेंट के नाम से ही जानते हैं, ठीक है. तो दिस चेंज वाज मेड ड्यूरिंग द 1951 फर्स्ट अमेंडमेंट्स इन UCP गाइडलाइंस was used, and the method of settlement, payment acceptance, negotiation and purchase were introduced during this particular period. The very important concept in documentary credit operation, all the parties deal in documents and not in goods, and the bank must determine compliance on the basis of documents alone. It was highlighted. अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे
कोई भी दो उनके बीच में अगर आपका ऐसा ट्रांजेक्शन हो रहा है, सो जो भी बैंक और फाइनेंशियल पार्टीज आपका इन्वॉल्व है, दे कंसीडर एलसी ओनली, ठीक है। उनको गुड्स या उनसे आपका मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोमिसेस इन एवरीथिंग दैट इज या लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज बेस्ड ऑन दैट डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन्स जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो एलसी में जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उससे ज्यादा का इंश्योरेंस आपका नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरीके से जो वेट है आपका दैट इज एज पर द डॉक्यूमेंट्स नॉट एज पर द गुड्स। तो इस तरीके से आपका चीजें या हर चीज का मीडियम आपका एलसी विल बी, एलसी जो डॉक्यूमेंट्स है उसके कहीं ना कहीं जो राइट्स हैं या उसका जो इंपॉर्टेंस है उसको यहाँ पे आपका बढ़ाएगा, ठीक है। प्रोविजन विद रिगार्डिंग द इशूइंग बैंक हैड reasonable time to examine the documents and the stipulation that description of goods on the commercial invoice must correspondent with the description in the credit और LC आपका, ठीक है, was also highlighted। तो यहाँ पे भी जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जो भी आपका जो डिस्क्रिप्शन है आपका LC के अंदर दैट विल बी रेफर्ड, ठीक है, उसको हम रेफर करेंगे फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। तो उसी को हम लोग आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका वरीयता देंगे। इसके अलावा द इशूइंग बैंक हैड रीजनेबल टाइम टू एग्जामिन द डॉक्यूमेंट्स, उस मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है उसको उसकी एग्जामिनेशन के लिए दे हैव अ सर्टेन और फिक्स टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, दे विल गेट अ स्पेशल और फिक्स टाइम ड्यूरेशन। UCP 222 in 1962, the UK and Commonwealth Bank adopted the UCP DC for the first time, including the provision that the documentary credit is binding on all parties, a rule that a credit is separate from the sale uh, or other contract on which it may be based, and that the confirming bank negotiate without recourse, where the sorry, confirming bank negotiate without recourse were introduced। confirming bank negotiate without recourse मतलब आपका एक होता है विद रिकोर्स, एक विदाउट रिकोर्स, मतलब इट इज अ काइंड ऑफ कि इसके लिए आपको कोई ऐसा गारंटी या इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एलसी के ऊपर आपको किसी एडिशनल गारंटी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी। द डिटेल ऑफ हाउ टू हैंडल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द सेकंड बेनिफिशियरी इफ फर्स्ट बेनिफिशियरी फेल टू सब्स्टिट्यूट इट्स ओन डॉक्यूमेंट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। अगर फर्स्ट बेनिफिशियरी आपका लूज करता है तो सेकंड बेनिफिशियरी को कैसे मिलेंगे, उसके डॉक्यूमेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। UCP 290 in 1974, इंट्रोडक्शन ऑफ टर्म नोमिनेशन एंड इट्स यूज, तो यहाँ पे आपका नोमिनेशन को यूज किया गया। द एडिशन ऑफ डिटेल रिगार्डिंग इनकंसिस्टेंसी बिटवीन डॉक्यूमेंट्स, a new article covering combined transport, assignment of proceeds, and the default period for presentation within 21 days after the date of issuance of bill of lading or अदर ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये जो नई चीजें आपका यहाँ पे इंट्रोड्यूस है। अब ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा यार इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। सो आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज, आपका यूसीपी 1 2 3 4 5 तक आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। जस्ट डू द रिविजन थिंग्स, कोर्स कंटेंट का पार्ट है, लेकिन यूसीपी 600 इज मस्ट, ठीक है। वहां पे जो उसकी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे यू कैन नॉट इग्नोर देम, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। यूसीपी 400 आपका 1983, this revision resulted in restructuring of the entire text and brought out a layout of the UCP as is prevalent today's, and some of the important provision were। तो जो अभी UCP का आपका जो LC डॉक्यूमेंट्स का आपका लेआउट है दैट गेट इंट्रोड्यूस इन, मतलब जो अभी हमारे यहाँ चलता है वो आपका UCP 400 के अंदर ही इंट्रोड्यूस हो चुका था, ठीक है। So the requirement that the advising bank is to take reasonable care to check the authenticity of credit, ठीक है। तो यहाँ पे advising bank जो भी होगा that means which is correspondent bank for the issuing bank, ठीक है। जैसे इंडिया का SBI था, ABC from US that was advising bank, ठीक है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि दे विल चेक द क्रेडिट विद SBI कि हाँ सब कुछ सही है या नहीं है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया क्योंकि जो सेलर है दैट बिलोंग्स टू द एडवाइजिंग कंट्री, राइट। और जो आपका नॉमिनेटेड बैंक होगा वो भी उसके ऊपर रिलाई करता है। इंट्रोडक्शन ऑफ टर्म डेफर्ड पेमेंट अंडरटेकिंग एज
एज अ सेटलमेंट मीन्स, तो डेफर्ड पेमेंट्स अंडरटेकिंग्स को आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया. सेपरेट आर्टिकल कवरिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड बैंक टू बैंक रिम्बर्समेंट. इसके अलावा डेफिनेशन ऑफ transshipment was get introduced during this particular period, and these all are part of today's UCP 600 also. ठीक है. UCP 500, the last one, ठीक है, 1993. So this revision is the first UCP that many of the documentary credit practitioners across the globe have experienced, and the revision consists of many changes. जैसे credit is irrevocable if the documents credit is silent on the issue. ठीक है, तो अगर मतलब वहां पे मेंशन नहीं है तो इट इज नोन एज irrevocable. ठीक है. रीजनेबल टाइम नॉट exceed 7 banking days following the date of presentation of documents. Earlier it was 21 days, in which to determine compliance or non-compliance. Indication of who can sign transport documents and रीडिफाइनिंग ऑफ वर्ड ट्रांसशिपमेंट. तो यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट्स जो आपका वर्ड है उसको दोबारा से रीडिफाइन किया गया. नाउ वी कम टू UCP 600, the most important areas for your upcoming examination. Total 39 articles, and I'll show you the clubbing of all those 39 articles also. ठीक है. So UCP 600 आपका जो लेटेस्ट प्रैक्टिसेस आपके हैं. ठीक है. So ICC Paris appoint in 2000 आपका ICC Paris appoint a task force after approval of the Banking Commission in 2003 to undertake revision of the UCP 500. The task force, after working for over 3 years, presented a draft of the new UCP. The drafting group constituted members from 9 countries which had 15 meetings before the draft were finalized. देखो background आपका UCP 600 के लिए. A consultative group comprising 41 members from 26 countries was formed to discuss the draft. The draft was also referred to national committees, including ICC India. So ICC India, and key issues were identified, taking into account various ICC opinions. Doc decks. Doc decks is documentary credit dispute resolution expertise decisions, papers, कोर्ट एंड डिसीजंस. ठीक है, तो आपका यहाँ पे इन्होंने क्या किया, दे सेंड दैट पर्टिकुलर ड्राफ्ट टू 41 मेंबर्स ऑफ 26 कंट्रीज. जैसे आईसीसी इंडिया को भी वो आपका आया, हर जगह के कंट्रीज ने उसको आपका डिस्कस किया, आपके उसमें जो भी हाईलाइटेड या चैलेंजेस आपके आते हैं उन सबको यहाँ पे डिस्कस किया गया. ठीक है. सो इसके बाद आपका डॉक डेक्स इज वन ऑफ द ओपिनियन options available to the parties, the LC resolved letter of credit dispute. Its full form is ICC Documentary Credit Dispute Resolution Expertise. After extensive working discussion, deliberation on various articles, practices, and need to simplify the article, the ICC Banking Commission approved the draft of UCP 600 in its meeting 25th of October 2006, bringing the new UCP which become effective from 1st of July 2007. आपका ठीक है, जो प्रेजेंट गाइडलाइंस आपकी हैं. तो इसमें आपका UCP 600 represent the latest and current revision of UCP aligned with ISP 98, which cover new article covering definition and interpretations. डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशंस आपका यहाँ पे लाया गया जो कि आपके आर्टिकल 1 एंड 2 में ही आपके हैं. ठीक है. रिमूवल ऑफ द रिवोकेबल क्रेडिट, जिससे मैंने आपको पहले बताया था, अब रिवोकेबल क्रेडिट नहीं चलता. देयर आर एलसी इज ऑलवेज इररिवोकेबल क्रेडिट. ठीक है. सो न्यू सब आर्टिकल कवरिंग डॉक्यूमेंट लॉस्ट इन ट्रांजिट. अगर डॉक्यूमेंट्स आपका लॉस्ट हो जाते हैं तो उनके लिए एक सब आर्टिकल आपका ऐड किया गया. ठीक है. Setting of maximum examination period as 5 banking days follows the days of presentation. पहले कितना था 21 से 7 से इसको कहाँ पे लाया गया 5 में आपका जो एट प्रेजेंट है. The stipulation that documents are to prepare to fulfill their function where the credit is silent with regard to data content, possibilities for handling discrepant documents. So ये सारे जो नई नई चीजें आपका जो यहाँ पे UCP 600 के अंदर आपका इंट्रोड्यूस किए गए. ठीक है.
सो इन द आर्टिकल ऑफ यूसीपी 600 कैन बी ग्रुप, तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया देयर आर 39 आर्टिकल्स, तो उनका ग्रुपिंग, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू रिमेंबर ऑल द आर्टिकल्स यहाँ, बट आपके बुक के अंदर इनकी जो ग्रुपिंग है वो आपका करके दी है, जैसे 1 to 5 में क्या क्या चीजें आती हैं या फिर अदर्स आपका, ठीक है। सो जैसे, सॉरी देयर इज समथिंग मिसिंग, यस, सो आर्टिकल 1 to 5 डेफिनेशन, इंटरप्रिटेशन, इंडिपेंडेंस ऑफ एलसी, अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट, 1 से 5 के बीच में इनको डिफाइन किया गया। 6 to 10 अवेलेबिलिटी, एक्सपायरी डेट, प्लेस, obligation of issuing and confirming bank, advising credit and amendments, 6 to 10. 11 to 17 pre-advised credit, nominated bank, reimbursement arrangement, complying presentation, original documents, etc. Article 18 commercial invoice, ठीक है, so article 18 which is related to commercial invoice, ये जो इंडिविजुअली और 2-3 वाले हैं, प्लीज डू रिमेंबर दिस वन, ठीक है। आर्टिकल 19 to 27 ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, 28 इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट, 29 to 33 extension, tolerance and partial and installment drawing and hours of presentation. Article 34 to 37 disclaimers, 38 and 39 transferability and assignment of proceed. So these are the 39 articles under UCP 600, ठीक है। तो ये 39 आर्टिकल्स के उसमें कहीं ना कहीं डिफाइन किया गया आपका कि जो एलसी की आपका जो जर्नी होगी फ्रॉम स्क्रैच टू एंड, आपका स्टार्ट टू एंड आपका, ठीक है। जैसे अगर कोई ओपनिंग बैंक होगा, सो व्हाट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओपनिंग बैंक, इफ देयर इज सम एडवाइजिंग बैंक और नॉमिनेटेड बैंक, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एप्लीकेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, तो ये, और आपका इंश्योरेंस, बिल ऑफ लेडिंग, एवरीथिंग इज डिफाइंड अंडर दीज 39 आर्टिकल्स, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप सबके लिए, सो प्लीज डू टेक केयर अबाउट दिस, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पार्टीज के ऊपर, ठीक है, लाइबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट ऑफ द पार्टीज। एक चीज, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जैसे अगर आपका जो एक्सपोर्टर बैंक है या एक्सपोर्टर कंट्री, उसकी वजह से कुछ आपका प्रॉब्लम्स होता है, या अगर कोई भी, एवरीथिंग इज फाइन बट कुछ ऐसे, मतलब कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से आपका एलसी के दौरान नुकसान हो रहा है, तो हु विल बियर दैट पर्टिकुलर लॉस, तो आपका आंसर होगा एप्लीकेंट, ठीक है। इवेंचुअली अगर कुछ भी ऐसा होता है, एप्लीकेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वन, एप्लीकेंट मींस इंपोर्टर, ठीक है। चलो तो सबसे पहले क्विकली गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वन गाइस। ठीक है, सो सबसे पहले एप्लीकेंट की ही बात करते हैं। द एप्लीकेंट ऑफ एलसी मस्ट गिव कंप्लीट एंड प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन फॉर इशुएंस of letter of credit and any amendment thereof. The LC must not include excessive detail or give any reference of credit previously issued to avoid any confusion or misunderstanding, which is defined under Article 5. The applicant should indemnify banks against any obligation imposed by foreign laws. Article 18 आपका, ठीक है, जैसे अभी हम लोग जिसके ऊपर बात कर रहे थे। Issuing bank is the party acting on behalf of the applicants and should therefore ensure itself about the credit worthiness of the applicant. जब आप उसके behalf में LC जारी कर रहे हो, so you have to make sure about the credit worthiness of the applicant. The issuing bank give a definite undertaking to make payments in case of sight and accept and pay on maturity in case of acceptance or deferred payment, to authorize bank to negotiate and reimburse the negotiating bank provided the stipulated documents are presented under LC 2 and 9. Advising bank has option to choose as whether it wish to advise LC और नॉट, ठीक है। अब एडवाइजिंग बैंक, जैसे SBI ने ABC को अपना एडवाइजिंग बैंक बनाया, ठीक है, तो दे डू हैव दैट ऑप्शन, बट हाँ, उनको अगर वो नहीं एडवाइस करना चाहते हैं, दे हैव टू क्लियर दिस पर्टिकुलर। इफ इट एग्रीज टू एडवाइज द LC, देन इट मस्ट do so by taking reasonable care in checking the authenticity of the credit with their जो भी आपका partner bank है from the importers country. In case it decide not to advise a LC, then it must inform the issuing bank immediately.
if the advising bank is unable to establish the authenticity of LC, right? Next one. So documents आपका, जैसे अगर हम लोग बात करें documents अंदर आपका LC, scrutiny, crystallization, follow up for bill under LC, safeguard for banks, जिसमें bill of lading, insurance and others, so they are generally part of this one. ठीक है, so again बहुत सारी चीजें. अब payments के लिए भी generally use bill of exchange. ठीक है, so bill of exchange it is a creditor documents. ठीक है, bill of exchange कौन issue करता है? Creditor issue करता है. I order to pay you or I order to pay me or my order, like जैसे 2 months later I order to pay you, pay me or my order worth rupees 10 crores for value receipt, something like this. ठीक है, so bill of exchange being one of the most important financial document, it drawn by the beneficiary. ठीक है, मतलब beneficiary means creditors on LC issuing bank. It envisages the issuing bank to make the payments immediately if it is drawn on site or accept and pay on due date. ठीक है, तो जैसे who will issue this particular one? जो आपका सेलर्स का बैंक है, सेलर्स का बैंक कौन? बायर्स बैंक. ठीक है, तो यहाँ पे बैंक टू बैंक आपका डीलिंग होगा, कस्टमर्स के ऊपर जनरली नहीं जाएगा. It is drawn on acceptance basis. It should be in normal due course satisfy the following requirements. It should be drawn by the beneficiary on the issuing bank. Please do remember this. कई बार ये पूछ लेता आपको. ठीक है, and payable at tenure mentioned in the LC. ठीक है, अगर वो उसेन से तो आपका immediate, और अगर आपका जैसे सॉरी अगर वो डिमांड है तो आपका इमीडिएट, और उसेन से तो जो भी स्पेसिफिक डेट उसमें मेंशन है, डेज आपका. it should indicate the issuing bank name and letter of credit number along which it's along under which it drawn. It should, unless and otherwise specified, be drawn in the currency of letter of credit and should not exceed the amount of LC. ठीक है, तो LC की जो करेंसी है और एंड आपका जो अमाउंट है उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए. ठीक है, LC की करेंसी में ही होगा और आपका बेसिकली जो अमाउंट है LC के अंदर, जो उनका सेल का अमाउंट है उसको एक्सीड नहीं करेगा. एनी करेक्शन शुड बी ड्यूली ऑथेंटिकेटेड. कोई भी करेक्शन है तो वो आपका टाइमली बेसिस पे चेंज हो. इनवॉइस इज बेसिकली इट इज अ सेल एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर. ठीक है, जिसके बेसिस पे मतलब आपका ओपनिंग बैंक विल यूज दिस पर्टिकुलर वन, और वी कैन से बायर विल प्रेजेंट इनवॉइस टू ओपनिंग बैंक. ठीक है, क्योंकि मेरे को इसके बेसिस पे आपको ये चीज करवानी है. ठीक है, so an invoice is a commercial documents and is a basic necessity of trade documents. It is prepared by the beneficiary giving details of good, quantity, value in unit terms, weight and total value of good. Following are the specification about the invoice. It should be made out by the seller or beneficiary as stipulated in LC. It should, unless and otherwise specified in letter of credit, be made out in the name of applicant or opener of the LC. Description of good must corresponded which description of good given in the LC. ठीक है, जो मतलब LC के अंदर जो आपका है और आपका जो इनवॉइस, दोनों के अंदर करेक्ट मैच होना चाहिए. ठीक है, इनवॉइस मस्ट इंडिकेट द ऑर्डर नंबर, contract number and performa invoice number, and number of LC along with the issuing bank name. The invoice value should not or invariably exceed the LC value. If invoice is issued for an amount in excess of the amount permitted by credit when not specifically prohibited by term of LC, as per article 18B of UCP DC, the drawing should not exceed the amount mentioned in the LC. ठीक है, देखो यहाँ पे आपको जैसे invoice, suppose that invoice value is 10 million US dollar. ठीक है, and आपका LC value is suppose that 5 million US dollar. ठीक है, so the amount will which is payable will be this as per section आपका 18B आपका, अगर ऐसा कुछ भी रहता है. ठीक है, अगला है बिल ऑफ लेडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो बिल ऑफ लेडिंग अ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स एविडेंटिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द पोर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस टू पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन. ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपका जो जैसे जो डॉक ओनर्स आपके होते हैं उनके द्वारा इशू किया जाता है. ठीक है,
तो कहाँ से मूव हुआ और कहाँ पे आपका वो डेस्टिनेशन, ठीक है। तो दो आपका ओरिजिनेशन एंड ओरिजिनेटिंग प्लेस एंड आपका डेस्टिनेशन। इट इज अ रिसिप्ट इशूड बाय शिप ओनर, जैसे यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी किया गया, शिप ओनर और its authorized agent, stating that the goods indicated therein, quantity, quality, descriptions, are shipped on specific date and through specific vessels and deliverable to the person mentioned therein as the consignee or to his order after payment of all dues टू दी शिपिंग कंपनी, ठीक है। तो जैसे उसके जो भी आपके शिपिंग कंपनीज के पेमेंट है वो अगर वो करेगा तो वो हम इस पर्सन को यहाँ पे इसको डिलीवर करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है। तो जो बड़े बड़े शिपमेंट्स आपके होते हैं वहां पे काफी ज्यादा यूज होता है। द बिल ऑफ लेडिंग शुड बी अ complete set of negotiable copies along with number non-negotiable copies as stipulated in LC। हर चीज आपका एलसी के बेसिस पर डिजाइन हो रही है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देख रहे होंगे। So it should bear the signature of ship owners or its authorized agent. The description of goods should correspondent with the requirement in terms of LC and mention in invoice. Bill of lading should bear the letter of credit number along with the name of the issuing bank आपका, ठीक है। तो यहाँ पे भी सारी सेम चीजें जो रहेंगी। Payment of freight should be clearly indicated in bill of lading as per the requirement of LC, ठीक है। तो जैसे आपका LC के उसमें डॉक्यूमेंट्स में मेंशन होगा कि इतना आपका पेमेंट्स रहेगा इन अदर्स, so that should be clearly mentioned, ठीक है। The letter of credit should call shipped on board bill of lading and accordingly bill of lading should bear such clauses. It should be drawn to the order of shipper, bank endorse or in favor of the issuing bank as stipulated in LC. The date of shipment should be within the date of stipulated in the LC, ठीक है। Partial shipment or transshipment if permitted in the letter of credit should be clearly indicated in the bill of lading also, ठीक है। तो ये कुछ आपके जो गाइडलाइंस हैं जो आपको थोड़ा सा पढ़ने पड़ेंगे, और बहुत बार बिल ऑफ lading, इनवॉइसेस, इनके बारे में वो आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। The gross weight, net weight should be indicated in the invoice. The bill of lading should not generally be dated prior to the date of issuance of LC, ठीक है। तो पहले एलसी इशू हुआ देन आपका ये इशू हुआ, ठीक है। अनलेस स्पेसिफाइड दिस, द बिल ऑफ lading should not be clause unless specified permitted in the LC आपका, ठीक है। तो सारी जो LC की गाइडलाइंस है वो। अगला हमारे पास है इंश्योरेंस, ठीक है। सो इंश्योरेंस से रिलेटेड आपका इंश्योरेंस पॉलिसी सर्टिफिकेट्स, it must be issued and signed by the insurer, insurance company or their agent, article 34 subsection A. It should not issued by the broker, ठीक है, कोई ब्रोकर के द्वारा इशू ना हो, ठीक है। The date of issuance of insurance must be on or before the date of shipment, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। And or it must be endorsed by the specific notions that the cover is effective from the date this date to this date, ठीक है, कहां से लेकर कहां तक कवर होगा उसको। The currency of issuance must be same as the currency of LC, ठीक है। जिसमें आपका LC का पेमेंट होगा उसी में आपका इंश्योरेंस प्रीमियम का भी पेमेंट होगा। The policy should clearly indicate the वो इज इट इज कवरिंग, ठीक है। जैसे आपका द पोर्ट ऑफ शिपमेंट, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन एंड should also mention the point of termination of insurance coverage. Claim should be made payable in the country of applicant stem, तो ये जो क्लेम है आपका कहाँ पे पेबल होंगे, एप्लीकेंट के कंपनी में, क्योंकि वो इंपोर्टर आपका है, he is the purchasing the goods in others, ठीक है। All original must comply with the documents. The description of good is in the insurance policy. Certificate should in the conformity of the LC itself, ठीक है। तो सारी चीजें अगेन आपका LC के ऊपर रहेंगी। अब आता है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। ये कौन कहां से होगा आपका, किसकी कस्टम से, जो सेलर का कस्टम है वहां से, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो आपका सेलर आपका जब सामान को शिपमेंट करा है तो वहां का जो कस्टम है दे विल इशू दिस पर्टिकुलर, ठीक है। सो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन determine the origin of goods. It must be issued and signed by an independent authority such as Chamber of Commerce, informing origin of goods, value, invoice, number of bill of lading. Detail appearing in the certificate of origin must
consistent with their with other documents. It must be ensured that origin of good is not from any war fighting country consisting of banned hazardous goods also. ठीक है, तो ऐसे कहीं बम बारूद आपका लेके चल रहे हैं. ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार पूछा जाता है. ठीक है, so the issuing bank on receipt of documents draw under the LC has obligations to pay immediately. If the document are drawn at site or accept and agree to pay on due date, if the document are drawn on acceptance basis, provide the documents are drawn strictly as per the term and condition of LC. ठीक है, तो दो तरीके से आपका क्रिस्टलाइजेशन, वन इज ऑन साइट, दूसरा आपका जो भी ड्यू डेट है, ड्यू डेट भी है, सो दे हैव टू लाइक जैसे आपका बिल ऑफ एक्सचेंज आपका इश्यू हो गया अदर्स, सो दे कंफर्म द पेमेंट आल्सो. ठीक है, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है. ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट. लेटर ऑफ क्रेडिट जो आपका गारंटी दे रहा है किसको, आपका सेलर को, इफ यू विल फुलफिल दिस कॉन्ट्रैक्ट यू विल रिसीव पेमेंट्स, फुल पेमेंट्स. ठीक है, अब ये जो प्रॉमिस किया गया इसको गारंटी दे रहा है आपका स्टैंड बाय एलसी. ठीक है, तो मतलब इट्स अ गारंटी डॉक्यूमेंट्स. अब गारंटी वर्ड यूज नहीं करते कुछ कंट्रीज में, इसलिए इसको यूज करते हैं. इंटरनेशनल ट्रेड हैज बीन डोमिनेटेड बाय एलसी ट्रांजैक्शंस whereby the seller is assured of payment by submitting documents in compliance and conformity with the term and condition of LC. Standby LC has often been used in situation where देयर इज नॉन परफॉर्मेंस. ठीक है, अगर वो एनपीए होता है तो बैंक विल मेक द प्रॉब्लम. ठीक है, पेमेंट्स आपका. ठीक है, सो स्टैंड बाय एलसी का रोल क्या है, मतलब एक नॉर्मल मतलब एलसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये चीज है कि अगर मतलब एलसी का मतलब है कि सेलर विल रिसीव फुल अमाउंट्स इफ दे डू द शिपमेंट, सब कुछ सही ढंग से करेंगे तो ये बैंक आपको गारंटी दे रहा है. अगर कल के डेट में बायर आपका डिफॉल्ट कर जाता है, सो बैंक विल मेक दैट पर्टिकुलर पेमेंट. भले ही बैंक बायर के साथ कैसे भी डील करे, दैट इज देयर प्रॉब्लम, बट सेलर विल रिसीव दैट मनी, सो दैट इज एलसी आपका, स्टैंड बाय एलसी. और टू पुट इट लेमन्स वर्ड, so almost a substitute of guarantee. The uses of standby LC is mostly witnessed in countries like USA, where financial guarantee are not used and standby LC act as a substitute of guarantee. ठीक है, तो ये आपका जो रहता है. This type of LC is opened by bank in countries where there restriction of issuing of guarantee, and therefore standby LC provide a suitable substitute for performance or financial guarantee. The documents required are bare minimum, like proof of delivery of goods, proof of non-performance or a simple claim form. ठीक है, सो इंडिया में अगर हम लोग बात करें आपका, ठीक है, सो यूज ऑफ स्टैंड बाय एलसी बाय ऑथराइज्ड डीलर्स. बैंक कैन एस्टेब्लिश स्टैंड बाय एलसी फॉर फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एज अ डॉक्यूमेंट ऑफ प्रॉमिस इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस सिचुएशन, स्पेशली एज सब्स्टिट्यूशन to guarantee, which authorized dealers are permitted to issue under FEMA 1999. तो जिसमें आपका an exporter on account of export into India owed to a person resident in India by a person resident outside India for a bona fide trade transaction duly covered by a counter guarantee of bank of international repute or resident abroad. Exporter may also opt to receive standby LC standby LC in respect of exporters from India also. ठीक है, bankers commercial standby bankers have been permitted by Reserve Bank of India to issue standby LC toward import of goods into since standby LC covering import of goods and susceptible to certain attendant risk in the absence of evidence of shipments issue insurance cover, importers should be advised and explain of the risk factors involved, chances of abuse in according to the request of establishment of standby LC for importer of goods into India. ठीक है, तो बेसिक आपका जैसे और कंट्रीज में होता है वैसे ही यहाँ पे भी जो यूज होगा. The following safeguard may be taken where standby LC are issued by the banks, जिसमें आपका the facility of issuing commercial standby may be extended on a selective basis and of the following categories, जैसे following categories of importers only, where such standby are required by the applicants
who are independent power producers, importer of crude oil and petroleum product. Special category of importers like export houses, trading, star trading houses, superstar trading houses, 100% AOUs. ठीक है. Public sector unit, public limited companies with good track records and others. ठीक है. तो ये जो सारे एरियाज जो आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट फेज आपका, ठीक है, और फाइनल फेज इज इंटोकॉम्स. ठीक है. सो अगर हम लोग बात करते हैं, सॉरी, इनको टर्म्स, ठीक है, इनको टर्म्स का मतलब होता है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स. ठीक है. ये जो आपका एलसी डॉक्यूमेंट्स होता है, तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी को डिफाइन किया जाता है कुछ एब्रिविएशंस के साथ. ठीक है. सो दे जनरली नोन एज इनको टर्म्स. ठीक है. सो इनको टर्म्स 2000 जो अभी आपका काम कर रहे हैं, 2020 सॉरी, पहले 2010 थे आपका, अभी है आपका 2020 आपका. So parties to contract are often not aware of different trade practices in their respective countries, which can cause misunderstanding resulting in unnecessary dispute. As such, ICC published a set of international rules for interpretation of trade terms, which is known as Incoterms. The ICC publication on Incoterms has been updated several times. The latest version being Incoterms 2020. The full form of Incoterms is International Commercial Terms. तो मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या करा, मतलब जैसे हमने बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस 39 आर्टिकल्स के दौरान हमने आपका समझाई. अब कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है यार कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है या सेलर की है, तो उसको भी उसने सिंप्लीफाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ इनको टर्म्स. ठीक है. तो उसने आपका टर्मिनोलॉजी दे दिया इन आपका, जैसे कोई भी एक टर्मिनोलॉजी, इट बिलोंग्स टू बायर और सेलर, ऐसा उन्होंने बना दिया. आई शो यू द लिस्ट आल्सो. ठीक है. सो हियर वी हैव अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ इनको टर्म्स 2020. So Incoterms apply to a contract of sale but not contract of carriage. They deal only with the relationship between seller and buyer. These can be broadly classified into 4 categories. ठीक है. कौन सा? डिपार्चर, मेन कैरेज पेड, मेन कैरेज अनपेड एंड अराइवल. ठीक है. तो ये तीन चार आपके जैसे कौन कौन से हैं, जैसे पहला आपका एक्स वर्कर्स, नेम प्लेस. एक्स वर्कर्स जैसे जामनगर और पुणे आपका. ठीक है. ये जनरली सेलर को रहता है. ठीक है. सेलर को और बायर को, हाँ, इट इज सेलर, यस. हाँ. जैसे आपका सी एफ आर, अगर हम लोग देखें डिपार्चर में सिर्फ एक मेन कैरेज पेड, सी एफ आर, कॉस्ट एंड फ्रेट, सी एफ आर, कॉस्ट एंड फ्रेट. ठीक है. नेम पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, सी एफ आर, जैसे आपका, जैसे अगर हम जामनगर का बात करें तो जे एन पी टी, या अगर हम पुणे का बात, या चेन्नई आपका है, ठीक है, सी एफ आर चेन्नई अदर्स. ठीक है. सी आई एफ, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट. ठीक है. सी आई एफ स्टैंड फॉर कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट. नेम्ड पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है, जैसे आपका ऊपर था. ठीक है. इसके अलावा सी पी टी, कैरेज पेड टू, कैरेज पेड टू, नेम ऑफ नेम्ड नेम प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, जैसे सीपीटी दुबई. सीआईपी, सीआईपी कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू, नेम प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, सीआईपी दुबई. ये सब आपका बायर्स में, अपार्ट फ्रॉम दिस बिलोंग टू सेलर एंड हाँ, these are belongs to destination, 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 destination. सारे बायर्स के, डेस्टिनेशन बायर्स के रहेंगे. ठीक है. सी एफ एफ सी ए फ्री कैरियर. ठीक है. सो नेम प्लेस एफ सी ए मुंबई. एफ ए एस आपका फ्री लॉन्ग साइड शिप, नेम पोर्ट ऑफ शिपमेंट, सो दिस विल बिलोंग्स टू द सेलर्स आपका. ठीक है. एफ एफ ओ बी फ्री ऑन बोर्ड. ठीक है. नेम पोर्ट ऑफ शिपमेंट्स. डी ए टी डिलीवर्ड एट टर्मिनल, नेम टर्मिनल एट पोर्ट और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन. ठीक है. डीपीयू डिलीवर्ड एट प्लेस एंड डीडीपी आपका डिलीवर्ड ड्यूटी पेड आपका. ठीक है. सो 11 इनको टर्म्स आर करेंटली इन यूज. ठीक है. सो टोटल आपका कितने इनको टर्म्स हैं? 11 in use. These need to be known while ट्रांजेक्टिंग फॉरेन ट्रेड और हैंडलिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड डॉक्यूमेंट्स. ठीक है. तो मतलब जब आपका फॉरेन ट्रेड डॉक्यूमेंट्स को या एलसीएन को आप देखते हैं तो दे यूज दीज पर्टिकुलर शॉर्टकट्स. ठीक है. मतलब ये काइंड ऑफ एब्रिविएशंस हैं आपका एलसी से रिलेटेड हुए, फॉरेन ट्रेड में यूज होते हैं. ठीक है. और इन्हीं एलसी को एज अ कोड इन डॉक्यूमेंट, ये जो इनको टर्म्स हैं इनको हम एज अ कोड यूज कर रहे होते हैं. ठीक है. सो इफ यू आर डीलिंग इन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट,
यू शुड नो अबाउट दीज पर्टिकुलर थिंग। एग्जामिनेशन में इनको टर्म्स बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। इवन इन द रिसेंट वन जून जुलाई वाला जो पेपर हुआ था उसमें भी आपका देयर वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनको टर्म्स, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, जैसे मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग, जैसे अगर हम लोग बात करें इनको टर्म्स, ऑब्लिगेशन एंड चार्ज for buyers and seller, the various responsibility of supplier and buyers are shown in the figure. You can see as you move from left to right, and the obligation of seller increase, and whereas the buyers decrease. The first leftmost incoterms impose maximum responsibility on buyers, and then last वाला आपका on seller, ठीक है। जैसे incoterms आपका है, ठीक है, warehouse, ठीक है, आपका seller, warehouse responsibilities seller, EXW, FAS, FCA, ये हमारे जो 11 इनको टर्म्स हमने जो पढ़े थे, ठीक है। सो इनिशियली ऑन बायर्स, ठीक है, सो आपका सर्विसेज, एक्सपोर्ट, पैकिंग, लैंडिंग एट पोर्ट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन इनलैंड फ्रेट, ओरिजिन पोर्ट चार्ज, ओरिजिन फॉरवर्ड फ्री फीस आपका, देन ओशियन एंड एयर फ्रेट, देन वी हैव डेस्टिनेशन पोर्ट चार्जेस, कस्टम क्लियरेंस, कस्टम ड्यूटीज, एवरीथिंग। तो ये आपका बायर टू सेलर आपका कुछ इस तरीके से मूव करेंगे, ठीक है। सो इनिशियली मैक्सिमम ऑन बायर, ठीक है, आपका देन इट इज ऑन सेलर, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपका जो इस तरीके से जो आपका डिजाइन किया गया, ठीक है। सो और जो कहीं ना कहीं लाइक दीज टर्मिनोलॉजी, जब आपका जैसे जो डॉक्यूमेंट्स या अदर्स डॉक्यूमेंटेशन पार्ट या अदर्स होगा तो उसमें जनरली वी यूज दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप इन सबको याद करो, बट हाँ इफ यू हैव अ फेयर आइडिया आल्सो, इफ यू लुक बिफोर जस्ट आफ्टर बिफोर योर एग्जामिनेशन, तो वहां पे भी आप सीक्वेंस या अदर्स इनको थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, कुछ एब्रीविएशंस को आप याद रख सकते हैं, तो दैट विल हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। दिस इज इट, ठीक है। ये आपका पूरा लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट। सो एलसी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। यू विल डेफिनेटली गेट वन केस, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम केस स्टडी आपका पूछता है। I'll come up with the set of question to solve case studies also you need to know the fundamental of this particular unit, ठीक है। यहाँ से आपका UCP 600 guidelines are very very important, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो हमने समझा था, जैसे बिल ऑफ लेटिंग, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन, इनवॉइसेस, वो बहुत बार आपको एग्जामिनेशन में टेस्ट होता है, ठीक है। कई बार वो आपको प्रोसेस पूछ लेता है, कई बार स्विफ्ट मैसेजिंग आपको पूछ लेता है। तो दीज आर सम एरियाज जो बार बार एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट हुए। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाए, ठीक है। अगर आपको इतनी चीजें समझ में आ गई हैं, दैट मीन्स यू आर 50% प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिट, ठीक है। सो व्हाई आई एम सेइंग 50%, while you practice question and cases, so you'll remember, you'll memorize easily things, ठीक है। जो चीजें आपकी हैं एक बार में आपको ये सारी चीजें याद नहीं होगी, दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि आप इनको सबको रट जाओगे अदर्स, दैट इज फाइन। यू आर जस्ट बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट, योर फंडामेंटल्स और योर फाउंडेशंस, एंड फाउंडेशन इज मस्ट फॉर CIB एग्जामिनेशन, ठीक है। हमेशा किस्मत ऐसी नहीं होती कि पिछले बार वाला पेपर मिल जाए, ठीक है। पिछले बार वाला पेपर वॉज क्वाइट ईजी, ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करते हैं पिछले 3 सालों से तो। बट हाँ ठीक है, हमें अच्छी जंग के लिए रेडी रहना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जस्ट गो थ्रू, फॉलो दिस पर्टिकुलर सेशन ऑन रेगुलर बेसिस, एंड वंस वी विल डन विद द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट विद इन 30 टू in next 30 to 35 days, then I'll come up with unit wise MCQs and case studies, तो वहाँ पे रिविजन भी आपका हो जाएगा और चीजें भी आपके आसान हो जाएंगी। साथ ही साथ I'll share the PDF also, मैं आपको ऑलरेडी शेयर करते रहता हूँ। सो आप PDF भी आप देख सकते हैं, और अगर आपके कोई भी डाउट्स आते हैं तो यू कैन कनेक्ट मी थ्रू दैट टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, राइट। चलो तो आज के लिए इतना ही करेंगे दोस्तों। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर लिख के, ठीक है। और अगर आप लोगों की कोई सजेशन है, फीडबैक्स हैं, प्लीज फील फ्री टू शेयर दोस पर्टिकुलर वन, ठीक है। सो वी कैन वर्क ऑन दोज एरियाज एंड वी कैन ऑल्सो इम्प्रोवाइज, ठीक है। तो ये आपका 2 वे लर्निंग है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही सीख रहे हो, ठीक है, मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, मेरा भी बहुत अच्छी लर्निंग्स होती हैं आफ्टर गोइंग थ्रू दीज पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स एंड अदर्स, ठीक है। तो इसलिए मैं आपका पिछले 3-4 सालों से इसमें इन्वॉल्व हूँ, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मार्केट, ठीक है। और बहुत जल्दी आपके लिए बहुत और भी सरप्राइजेस बनाए गए हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी, उनके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। बट थोड़ा सा सेशंस को अपने साथी बैंकर्स के साथ जरूर शेयर करते हैं, ठीक है। और लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही करेंगे। दिस इज इट, बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।